اس کی مزید کارروائی ڈیکورم کے مطابق جناب چیئرمین صاحب آگے چلائیں. بسم اللہ سب سے پہلے ایڈریس کے لیے میں صدر ٹیکس بار جناب سید تنصیر بخاری صاحب کو گزارش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب چیئرمین شاہد مسعود بندر صاحب، جناب ممبر جوڈیشل ملک محمد اکرم صاحب، جناب ممبر جوڈیشل میاں عبدالباسط صاحب، جناب ممبر جوڈیشل میاں توقیر اسلم صاحب، جناب ممبر اکاؤنٹنٹ ڈاکٹر فہیم صاحب، اور آج کی تقریب کے اصل مدعا جناب اکاؤنٹنٹ ممبر امتیاز احمد صاحب، اور میرے تمام آنریبل ٹیکس بار ممبرز، تمام دوستوں کو السلام علیکم. آج فل کورٹ ریفرنس کی تقریب ہماری روایت رہی ہے، اور بینگ اے صدر مجھے یہ آنر ملا کہ امتیاز احمد صاحب کا فل کورٹ ریفرنس میرے ذمہ لگا. بطور پریزیڈنٹ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن میں کوشش کروں گا ایک نئی روایت پیدا کرنے کی. ویسے تو آنے والے ممبرز کو ہم دل و جان سے ویلکم کرتے ہیں اسی طرح کی ایک تقریب، لیکن اس سے یہ مجبوری ہے، اس کا ڈیکورم ہے کہ یہ کورٹ میں کی جاتی ہے، یہ کسی ہوٹل یا کسی جگہ پہ نہیں کی جا سکتی. یہ کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ کہلاتی ہے فل کورٹ ریفرنس. لیکن ود دا پرمیشن آف چیئر آئندہ سے ہم روایت رکھیں گے کہ آنے والے ممبر جو نئے ممبر چارج سنبھالیں ان کا ایک ویلکم ایڈریس کیا جائے. اس کو کہا تو فل کورٹ ریفرنس جاتا ہے. میں دل کی گہرائی سے مشکور ہوں میاں توقیر اسلم صاحب کا. وہ لاہور میں عدل و انصاف کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. وہ اس بار کے لیے امتیاز احمد صاحب کے لیے لاہور سے تشریف لائے. فل کورٹ ریفرنس تو یہ ہے کہ کراچی بینچ، لاہور بینچ، اسلام آباد بینچ اور تمام بینچز سے تمام ممبرز اکٹھے ہوں اور اپنے جانے والے بردر جج کو وہ خدا حافظ کریں اور نیک خواہشات کے ساتھ اس کو الوداع کہیں. امتیاز احمد صاحب آج ماشاءاللہ نہیں کل 60 سال کے ہوں گے، کیونکہ دفتری اوقات کی وجہ سے آج ہمیں فل کورٹ ریفرنس رکھنا پڑا، وگرنہ ان کی ہیپی برتھ ڈے کل ہے. اور امتیاز احمد صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. میری عادت نہیں ہے بٹرنگ کرنا یا ایکسٹرا مائل کوئی تعریف کرنا. تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دوں ان کا کیریئر. میں نے اس لیے آپ سے ود دا پرمیشن آف چیئر کہا کہ یہ والا تعارف روز اول ہونا چاہیے. جس دن امتیاز احمد صاحب نے جوائن کیا تھا اس دن ہمارے تمام بار ممبران کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے آنریبل اکاؤنٹنٹ ممبر یا جوڈیشل ممبر جنہوں نے چارج لیا ہے وہ کون ہیں، وہ کیا تھے، وہ کیسے ادھر پہنچے. اس سے حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے اور کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کامیابی کی طرف سفر صحیح سمت میں جاتا ہے. جناب امتیاز احمد صاحب نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی. بی اے آنرز کرنے کے بعد 1987 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا. سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1991 میں سروس کراچی سے سٹارٹ کی بطور اسسٹنٹ کمشن افسر. والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سی ایس ایس کرے، اور نو ڈاؤٹ سی ایس ایس جو بچے کر کے آتے ہیں وہ اسپیشل جسے کہتے ہیں ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. 1991 سے 1999 تک کراچی میں مقیم رہے. ڈفرینٹ آر ٹی او سی ٹی اوز تو اس وقت نہیں تھے، ٹیکس آفیسز 1 2 3 تھے. اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ایز اے ٹیکس کلیکٹر.
1999 में ट्रांसफ़र होकर इम्तियाज़ साहब को सिंध से पंजाब की हवा की तरफ भेजा गया और इनकी पोस्टिंग 1 साल साहिवाल में, 1 साल झंग में इन्होंने गुजारा। तो थोड़ा सा इम्तियाज़ साहब में पंजाबी टच भी आ गया। इसके बाद इम्तियाज़ साहब दोबारा 2001 में अपने वतन कराची की तरफ चले गए और 2010 तक कराची में बतौर डिप्टी कमिश्नर अपने अमूर सर अंजाम देते रहे। इसके बाद 2011 में FBR में स्पेशल असिस्टेंट टू मेंबर ऑपरेशन रहे और इसके बाद पहली जुडिशियल ड्यूटी असाइन हुई जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब को बतौर कमिश्नर अपील लार्ज टैक्स पेयर, पहले यूनिट था अब ऑफिस है, वहाँ बतौर कमिश्नर अपील भी इन्होंने अच्छे फैसले किए। हमारे बार मेंबरान को गिले शिकवे होते हैं, यकीनी तौर पे सिविल प्रैक्टिस या क्रिमिनल प्रैक्टिस में एक के हक में फैसला एक के ख़िलाफ़ में, हमारी प्रैक्टिस में एक तरफ डिपार्टमेंट होता है, एक तरफ हमारा टैक्स पेयर, कभी हमारे हक में कभी डिपार्टमेंट के हक में, ये चीज़ें चलती हैं। कमिश्नर अपील के बाद 2020 मार्च में इम्तियाज़ साहब ने एपेलेट ट्रिब्यूनल में बतौर अकाउंटेंट मेंबर चार्ज संभाला और उस दिन से लेकर आज के दिन तक करीब 33 माह बनते हैं। 33 माह लगातार इन्होंने जुडिशियल सर्विस के अंदर अपने अमूर सर अंजाम दिए। यहाँ पे कई जजमेंट्स की हेडक्वार्टर बेंच में मलिक अकरम साहब के साथ, बासित साहब के साथ, तमाम मेंबर्स के साथ रिपोर्टेड भी हैं, हेडक्वार्टर बेंच की भी हैं, मलिक साहब की भी हैं, तमाम, वो मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता। तमाम दोस्त हैं उनके पास, सॉफ्टवेयर भी है, जजमेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें। एक चीज़ जो इधर बहुत ज़रूरी है, बीइंग ए सादात, मेरा ये हक भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है कि कुछ चीज़ जिस लिए इस दुनिया में अल्लाह ने हमें खल्क़ किया है उससे भी तयशुदा। 1939 में इनकम टैक्स एक्ट में इस ट्रिब्यूनल की पैदाइश हुई थी। बनाने का तय किया गया था कि एक फोरम एस्टेब्लिश किया जाए जो बिफोर हाई कोर्ट और आफ्टर हायरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट किया जाए, ताकि उसके अंदर आमेज़िश ये हो कि एक अकाउंटेंट मेंबर जो प्रेमा फशाए उस डिपार्टमेंट का अफसर होता है और एक जुडिशियल मेंबर जो हम दोस्तों में से ही ऊपर आते हैं। फंक्शंस इस ट्रिब्यूनल ने शुरू किए 1941 में। जो तवज्जो तलब बात है, आज एपेलेट ट्रिब्यूनल 81 साल का हो चुका है, 81 years old। कितने मेंबर्स आए होंगे, कितने जुडिशियल मेंबर, कितने अकाउंटेंट मेंबर, कितने ही चेयरमैन, शायद गिनने लगे तो टाइम लग जाए, नाम लेना शुरू करें तो ज़्यादा वक्त लग जाए। ये वक्त बड़ा जालिम है, ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ये हमें गुजार जाता है, हम हैं से थे हो जाते हैं। मेरी ये बात करने का मकसद ऐसा कतन नहीं है। अगर हम यूरोप और उन मुल्कों को देखें, वो तो कहते हैं असल पैदाइश आफ्टर रिटायरमेंट होती है, असल जवानी, असल जो फ़न है वो तो आप जब 60 की अटेन करते हैं, ये लाइफ और रिटायरमेंट आती है उसके बाद। मेरा मकसद कहने का ये है, ऑनरेबल मेंबर्स के पास हम पेश होते हैं, हमारे तमाम मेंबर्स आते हैं, अपना केस लीड करते हैं, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ये चीज़ें हर बंदा डिज़ायर करता है, ख्वाह वो बंदा एक माशे का भी खुद ना हो, कैपेबल ना हो, नालायक हो, उसे जजमेंट याद ना हो, उसे सेक्शन भूल जाए, उसे साइटेशन याद ना हो, वो किताब उलटता रह जाए इधर दाएं बाएं। आज ऑनरेबल तमाम मेंबर जो यहाँ पे बैठे हैं, एक दिन वो भी पहले दिन किताब लेकर अदालत में गए थे। आज अल्लाह करीम ने आप सबको इज्जत बख्शी, अल्लाह ने मुकाम दिया, अल्लाह ने एक रुतबा दिया। ये जो दोस्त बैठे हैं, ये अल्लाह करीम जानता है इनमें से कौन कल इस कुर्सी पे बैठेगा, ये वो रब जानता है। ये तो तयशुदा बात है कि कोशिश हम करते हैं
मामलात सारे तय वो करता है, हमारे एंड से सिर्फ कोशिश हो। तो माशाल्लाह ट्रिब्यूनल हमारे इस्लामाबाद को हेड क्वार्टर का जो है माहौल बहुत प्यारा है, अकोमोडेट करते हैं मेंबर्स, रिस्पेक्ट देते हैं बार मेंबर्स को। मैंने जो स्टार्ट में ये बात लंबी ना हो जाए इसीलिए कहा था कि जब भी कोई मेंबर ज्वाइन करे उस वक्त एक तकरीब जिसे कहते हैं, सेक्रेटरी साहब आइंदा से हम ये चीज़ लाजमी सर विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब ये करेंगे कि उस वक्त एक इंट्रोडक्शन और एक इंटरेक्शन होना चाहिए। बार और बेंच ये जुदा नहीं है, हम और आप लाजिम और मलजूम हैं, उसके बगैर हम नहीं चल सकते। इम्तियाज़ साहब की मेरा इनके साथ बड़ी गुर्बत रही, शायद इन्हें याद भी ना हो, जब ये FBR में SA टू मेंबर ऑपरेशन आए थे, मैं इनके पास आया और ये अपने कमरे में बैठे थे, क्योंकि मैं इनको अपना भाई भी समझता हूँ, थोड़ी उबाली तबीयत के हैं। और मैंने आके एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उसकी, इनको याद नहीं होगा और ना मैंने इन्हें याद कराया है, मैं रिक्वेस्ट अभी करने गया था ऑफिस में, वो मैंने राज रखा है। मैं इनके पास गया, उसका कोई जुरिस्डिक्शन ट्रांसफ़र था जो भी था, यानी ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, मुझे अब इम्तियाज़ अहमद साहब से कोई मामला नहीं है, ये दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये अदालत है, इधर हम खुले दिल से आते हैं, अल्लाह करीम हमारे पे करम करता है, हमारी वकालत है, हमारा नाम है सारा कुछ। ये मैं आपको ट्रस्ट कीजिए, वो लेट हो रही थी ट्रांसफ़र ऑफ जुरिस्डिक्शन, FBR के पेचीदा काम है। मैंने बड़ी दफ़ा, मेरा एक एसोसिएट गया, उसने जाके कहा, अच्छा अमूमन एक नई बात किसी के लिए नहीं है, तमाम लोग FBR की प्रैक्टिस करते हैं, FBR में मामलात होते हैं, कई चीज़ें चलती हैं। आप बिलीव करें, जब मैं आया तो मैंने इनसे, मेरी भी आदत कुछ इसी तरह से है कि मिल जाऊं तो दोस्त बन जाता हूं, भाई बन जाता हूं। मैंने कहा सर, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेंबर ऑपरेशन के कमरे में गए, जाके कहते हैं ये सैयद है, इसकी इनकार किया तो आगे मसला हो जाएगा। यानी जो इनका अदा है, जो अंदाज है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वो जुरिस्डिक्शन भी ट्रांसफ़र हुई, कोई ऐसी उसमें चीज़ नहीं थी। वरना FBR में काम कराना, तो कीर असलम साहब भी FBR का हिस्सा रह चुके हैं, वो बेहतर समझते हैं। अली हसनैन साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, कमिश्नर रहे हैं, वो समझते हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब FBR का हिस्सा है, बड़ी दिक्कत आती है। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था। फिर कमिश्नर अपील में आए, केसेस करते रहे, फिर इधर इनके पास पेश होते रहे। इनका तारीफ़ कह लें, गैर पार्लिमानी तो नहीं, बुराई नहीं मैं कहूँगा, या हकीकत कह लें। इम्तियाज़ साहब का एक चीज़ है, तमाम मेंबर्स को, ये हमारे भाई जो इधर से हैं, ये इधर से भी। मैं अक्सर कहता हूँ, अल्लाह जब खल्क करता है इंसान को तो एक सिम इंस्टॉल करता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि खटक साहब बैठे हैं, इनका ये सेम फॉल्ट है, ये तो इस बात पे रुकते ही नहीं है। तो इम्तियाज़ साहब का जो दिल में है वो इनके लब पे है। ये दिल में, मैं अगर मैंने कोई ज्यादती की, मैंने कोई चीज़ नहीं की, मुझे ये सामने कहेंगे आपने ये गलत किया। आई लव दिस थिंग, आई लाइक दिस थिंग, आई अप्रिशिएट दिस थिंग, रियली। बात बड़ी मुख्तसर करते हुए मैं एक चीज़ कहूँगा, हम सारे बैठते हैं, TV सुनते हैं, इकॉनमी, जजेस पे बातें करते हैं, फलाना जज ये है, फलाना ये है, जो ही बार में निकलते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूँ, अगर इस पे हम सोचें, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बचता होगा इसकी जद से, इस शेर की जद से कोई भी नहीं बचता होगा, ये मेरा चैलेंज है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बात यह है कि अपनी तसी तो हम नहीं करते। तनसीर साहब मियाँ फसीयत, मियाँ नसीहत, और जी ये हो गया, वो हो गया, मैं खुद क्या हूँ मुझे सोचना है। मैं अपने ऐपों पे पहले चादर डालता हूँ और उसके बाद कहता हूँ फलानी पार्टी का, फलाना जज नहीं, ये फलाना 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 फलाना। बात को लंबा ना करूँ, मुख्तसर करते हुए, क्योंकि एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं परेशान था। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब गुज़िश्ता 2 महीने से सेहत के मसाइल की वजह से बड़ी सख्ती से गुजरे हैं। जब ये प्रोग्राम लेट हुआ, आई रियली वरीड अबाउट इट। मैं इनके PS के पास गया, मैंने कहा सर को पता करें, कॉल करें। वो खैर उसी वक्त कंफर्म हुआ कि निकल पड़े थे सर।
تمام ممبر سے اور سیکرٹری جنرل صاحب یہ بار کے اندر آفیشیلی چیئرمین صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کی جائے. پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا کرے, تندرستگی اور توانگی دے. ہمارے چیئرمین صاحب اپنے پوتے نواسے کو بھی ماسٹر ڈگری تک دیکھیں, بچوں کے بھی بیاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے سر. اب اگر کافی چیزیں رہ گئیں, مزید وقت نہیں لیتا. تھینک یو ویری مچ سر. امتیاز صاحب وش یو گڈ لک سر. فل کورٹ ریفرنس میں کلیپنگ نہیں کریں گے, بے شک میری تقریر کلیپنگ کریں. اب میں شروع میں جناب فارمر چیئرمین سید توقیر بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Honorable Chairman, Capital Tribunal, Inland Revenue, Honorable Judicial Members, Honorable Accountant Members, Honorable Members, Rawalpindi Islamabad, Tax Bar Association, السلام علیکم. آج میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ میں آج اس فل کورٹ ریفرنس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. میری جگہ پہ حافظ محمد ادریس جو ہمارے سینئر ممبر ہیں, ان کا خطاب تھا. ان کی پروسیڈنگ کا وہ حصہ تھے, وہ عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب جناب عزت مآب نے مجھے موقع دیا, تو میں ان کا شکریہ گزار ہوں. امتیاز صاحب کی جو خدمات ہیں ایز اے ایف پی آر آفیسر, ایز اے کمشنر اپیل, ایز اے ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل, پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل بات کی. اور بلکہ میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی ہیڈ کوارٹر بینچ ہو یا دوسرا بینچ ہو, تو جب ہم پیش ہوئے تو امتیاز صاحب کو انتہائی فرینڈلی پایا. اکثر چیز دیکھنے میں آتی ہے, ہم لوگ جو ہمارے جوڈیشل ممبرز ہیں وہ بھی روز جب اس سیٹ پہ نہیں تھے, اس سے پہلے دیکھتے رہے کورٹس پہ کہ جو ججز جونیئرس کو, نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں, وہ ان کو ویلکم نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹریبیونل پہ تو کم ہے, لیکن کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ممبر کھڑا ہو جس کو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اس طرح تضحیق آمیز طریقے سے, چونکہ یہ فل کورٹ ریفرنس ہے تو میں اس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے آنریبل چیئرمین صاحب کی اجازت سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اس کو تضحیق آمیز طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کی انسلٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, انسان میں خامیاں ہوتی ہیں, میرے میں خامی ہو سکتی ہے, میں بغیر پڑھے بغیر فائل دیکھے آ گیا. اور آنریبل ججز جو ہیں وہ ظاہر شام کو بیٹھ کے فائلیں پڑھتے ہیں اور صبح تیاری کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے ایک کیس کرنا ہے, میں یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, انہوں نے اس میں 20 کیس دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بار اور بینچ کا جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح ہی ہے کہ ہم آپس میں ایک فیملی کی طرح. اور الحمدللہ اس راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسیشن, باقی ٹیکس بار بھی اسی طرح ہی ہیں, ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے آج تک الحمدللہ کبھی ہماری کوئی کسی قسم کا بھی اپیلیٹ ٹریبیونل کے ساتھ یا کسی کمشنر اپیل کے ساتھ یا کسی لیول پہ بھی جا کے کوئی ایسی چیز نہیں ہو. تو الحمدللہ بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں. جناب پریزیڈنٹ صاحب نے ایک تاریخی بات کی کہ اس ٹریبیونل کی جو عمر ہے وہ 88 سال ہو گئی ہے, 81. تو ابھی میں ان کو درخواست کروں گا کہ یہ بیچ میں نہ بولیں. تو ہمارا چونکہ میں ان کا ریئل بردر ہوں, بڑا بھائی ہوں, تو دفتر میں بھی میں ان کی تصحیح کرتا رہتا ہوں. تو 81 سال کا نہیں ہے, 100 سال سے زیادہ کی عمر ہوگی اس اپیلیٹ ٹریبیونل کی. اور پریزیڈنٹ صاحب کو یاد ہوگا, میں 4 سال راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو پاکستان میں جب 100 سال پورے ہوئے اپیلیٹ ٹریبیونل کے, تو ہم نے پلاٹینیم جوبلی کا ایک فنکشن ارینج کیا تھا پر کانٹیننٹل میں, اور 75 ایئرز ہوئے تھے. چلو پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے, چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم نے پلاٹینیم جوبلی کا ایک پروگرام رکھا تھا. اس پروگرام میں سملر ڈے پہ انڈیا میں بھی سر وہ پروگرام رکھا گیا تھا, اور انڈیا میں اس پروگرام میں
जो उस वक्त के सदर थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो उस प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। लेकिन मुझे 81 साल है या 75 साल है, मजीद तो सी मेरी भी होगी, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में अदारों को वो इज्जत नहीं दी जा रही, नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। मैं बाकी इदारों की बात नहीं करता, मैं आज के इस पुरवकार तकरीर को सामने रखते हुए अपने इस एपीलेट, अपना मैं लफ्ज़ अपना कह रहा हूँ, अपने इस एपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करता हूँ कि हमारे जितने मसाइल हैं, मैं 4 साल सदर रहा, ये सदर है, ये सदर सबका सदर बैठे हैं, ये हमारे सबका सदर बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं, कि हम देख रहे हैं कि इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। जो बजट है वो सारा आपको नज़र आ रहा है, जो चीज़ें हैं वो सारी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ तक कि जनाब अली अब रूल्स भी, ये कोई पॉलिटिकल चेयरमैन साहब मेरी स्पीच नहीं है, कि अब ये कहा जा रहा है कि ये रूल्स भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज तक एपीलेट ट्रिब्यूनल के इंटरफेरेंस को की या कोई उनका काम बनता है? अब इसलिए ये किया गया कि इसके काम को स्ट्रक अप किया जाए, और इसमें हमारी कमजोरी है। ऑनरेबल जो जजेस बैठे हैं इनकी कमजोरी है। जब हम आपस पे मजबूत नहीं होंगे, जब हम आपस पे इत्तेहाद नहीं होगा, जब हम आपस में एक नहीं होंगे, तो हम इस इदारे को कभी भी इज्जत नहीं दिलवा सकेंगे। ऑनरेबल अकाउंटेंट मेंबर बैठे हैं, वो जाने वाले ऑनरेबल अकाउंटेंट मेंबर बैठे हैं। एफबीआर की तो सर हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस एपीलेट ट्रिब्यूनल को कमिश्नर अपील का डिवीजन बेंच बना दिया जाए, कि 2 एफबीआर के ऑफिसर बैठे, अपनी मर्जी से फैसले करें, अपनी मर्जी से सारा कुछ करें, जो ऊपर से डिक्टेशन आए जैसा। ये वाहिद एक इंडिपेंडेंट फोरम है। तो मैं आज की इस पुरवकार तकरीब के हवाले से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप कमेटी बनाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, बाकी बार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग इकट्ठे हों और इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए वो काम करें, ताकि जो इस एपीलेट ट्रिब्यूनल को इज्जत, जो वकार, जो चीजें चाहिए, आप लोगों ने चैलेंज करनी है ना, आप सर, वायरस चैलेंज करें, आप देखेंगे जनाब बिल्कुल, ये वो तो आप लोगों की तरफ से बिल्कुल होगी, हमने बिल्कुल। तो मैंने फॉलो कहा करना है बात को। पहले हमारी कमजोरी है कि जो उसमें तो कमेटी की जरूरत नहीं है, गो एंड फाइल द रेट बिफोर हाई कोर्ट। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमने ठीक की भी हुई है सर। इंशाल्लाह। नहीं वो इस और नहीं, वो दूसरी बात होगी। जो हमारा काम है इंशाल्लाह ताला, हमने इससे पहले भी किया, और ये बिल्कुल जो अभी कुछ दिन पहले, फ्यू डेज, असल में मैं चूंकि बात दूसरी तरफ नहीं सही तरफ जा रही है, कि हमारे कुछ दोस्त जो हमारी तरह के काले कोट में हैं, उन्होंने इसी ट्रिब्यूनल को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर ये वाजिब है कि हम भी उसकी इज़्ज़त करें। अगर फ़र्ज़ कर लें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, 4 ने रिज़ाइन दे दिया, ये मेरी कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, 4 ने रिज़ाइन दे दिया इसलिए कि वो उसको चीफ देखना पसंद नहीं करते, वो उसको चीफ दिल से दिमाग से मानना पसंद नहीं करते, ये हमारा कल्चर बन चुका है। फिर क्या करेंगे? उस अदारे को कमज़ोर करेंगे। उस अदारे को कमज़ोर करने के लिए लोगों को पिक एंड चूज़ किया जाएगा। जब लोगों को पिक एंड चूज़ किया जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान उस अदारे का होगा। जब उस अदारे का नुकसान होगा और वहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं उनकी इज्जत का नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह ताला सर, हमने कुछ दिन पहले, आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमने एक मीटिंग की, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, जैसे ऑनरेबल जुडिशल मेंबर साहब ने फरमाया कि हम जो ये प्राइम मिनिस्टर रूल बनाएगा ये करके इसकी वाहिद से चैलेंज करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा जज्बाती बात होगी।